Hello aspirants, I hope the preparation for UPSC Civil Services Examination 2026 is on track और UPSC CSC 2025 के भी मेंस अपीयरेंट कैंडिडेट्स आप सारे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और आप सारे ये कोशिश कर रहे हैं that you happen to crack this examination. So first of all, best wishes from the Nimbus Academy IAS, and today we are here. I am Manpreet Singh Mahal and we have come up with a series जिसमें हम delineate कर रहे हैं the entire strategy to prepare effectively for this examination. तो ये series उनके साथ share कीजिए जो कि they are in the nascent phase of their preparation, जिन्होंने अभी अभी शुरू किया है, and this series is also important for the pro ones who think कि whether they are on track or whether they are not. So this series is basically bringing in the holistic preparation strategy कि किस हिसाब से हमने इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है. So in this series we have already discussed what is UPSC CSC examination, what are its various stages, वो stages के बीच बीच में किस हिसाब से आपके एग्जाम्स होते हैं, and now today we are going ahead with the mains stage. तो मेन स्टेज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड व्हाट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लुक्स लाइक. देयर आर टू की पेपर्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. पहला वाला पेपर आपका जनरल स्टडीज का होगा एंड जनरल स्टडीज के पेपर में यू विल हैव टू स्टडी एवरीथिंग दैट इज इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंट एंड ऑल्सो द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट. तो ये सारा का सारा एनकम्पास होगा आपका जनरल स्टडीज पेपर 1 में. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दोज ग्रिलिंग 2 आवर्स, यू गो टू द पेपर 2 जिसमें आपका सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है विच इज कॉल्ड CSAT. और CSAT में यू विल बी गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, देन यू विल बी हैविंग रीजनिंग, ठीक है, verbal non-verbal reasoning both will be included, and then there will be key aspect of the English comprehension. So that is how your GS and the CSAT exam in the prelim stage will look like. Eventually we move to the mains examination. Mains examination, by virtue of its name, it means the main stage. So prelims is basically the hall ticket, जिसको कहते हैं एक टिकट है आपकी मेंस एग्जाम लिखने की. एंड मेंस एग्जाम इन टोटल कंसिस्ट ऑफ 1750 मार्क्स. सो 1750 नंबर का आपका मेंस एग्जामिनेशन होता है. दीज आर द मार्क्स व्हिच आर कंसिडर्ड फॉर योर मेरिट, ठीक है. और इसको हम लोग बेसिकली डिलिनिएट करते हैं 500 प्लस 1250. So these 500 marks basically pertain to your optional subject. So optional कैसे चूज करना है, optional subjects कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, that is the part of discussion of some other video, and we will be soon coming up with that also. And then this is the 1250 marks which encompass your GS1, GS2, GS3, GS4 and also the essay examination. So these are how the marks are demarcated, ठीक है. Eventually going forth with this, we see कि we have a paper A qualifying paper and paper B which is also qualifying in nature. These marks are not considered for your overall merit. Paper A में you can choose any one language from the 8th schedule of the Indian Constitution. So any one of those 22 languages can be chosen. And paper 2 or the paper B is rather of the English language. So English language, that is also compulsory and that is also qualifying in nature. Then we come to the paper 1, that is essay. उसके बाद GS1, General Studies 1, General Studies 2, General Studies 3 and General Studies 4. So why are these called General Studies? This is because they are encompassing different subjects. So it is not like your optional examination जिसमें कि आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट को स्टडी करना है इन क्वाइट डिटेल एंड यू विल हैव टू राइट द पेपर्स फॉर दैट. रादर हियर यू विल हैव टू राइट द जनरल आंसर्स ऑफ द जनरल स्टडीज व्हिच एनकम्पास द डिफरेंट डायमेंशंस, दैट इज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी. तो ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा. सो हाउ डज योर जनरल स्टडीज 1 लुक लाइक? इसका मैक्रो फ्रेमवर्क अब हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद विल बी डिस्कसिंग द कंप्लीट स्ट्रेटेजी एंड द बुक लिस्ट कि कैसे कैसे इसको हमने स्टडी करना है, कहां कहां से हमने इसको स्टडी करना है, कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इफेक्टिवली. तो सबसे पहले
मैक्रो फ्रेमवर्क में यू विल सी कि इट इज हैविंग 4 डायमेंशंस, 4 सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं. पहला सब्जेक्ट इज आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, देन इंडियन सोसाइटी एंड द ज्योग्राफी. ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी भी इसमें इंक्लूडेड है एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी के एस्पेक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है. दिस इज बेसिकली द मैक्रो फ्रेमवर्क कि मोटा मोटा ये कैसा नजर आता है. बट यू नो वॉट, इफ यू हैव टू रीच ए डेस्टिनेशन, तो आपको वो डेस्टिनेशन तक जाने का रास्ता पता होना चाहिए. और अगर आपके पास उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, देन व्हाट यू यूज इज जीपीएस ट्रैकर. अब जीपीएस या गूगल मैप्स को यूज करते हैं. तो अगर आपको GS1 में अपना रास्ता चुनना है, सही रास्ता चुनना है, तो वो रास्ता आपको जीपीएस ट्रैकर बताएगा. एंड द जीपीएस ट्रैकर फॉर यू इज द सिलेबस, कि सिलेबस क्या कहता है. तो अगर अपनी मंजिल तक, दैट इज टू बिकम एन IAS, IPS, IRS, IFOS, और कोई भी अगर आपको ऐसी कोवेटेड सर्विसेज चाहिए, तो अगर आपने वहां तक पहुंचना है तो कीप योर सिलेबस हैंडी. सबसे पहले सिलेबस में क्या मेंशन्ड है, दैट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स. सो जनरल स्टडीज 1 का सिलेबस somehow looks like this. This is nothing but an version of what the UPSC gives in its official notification. Word to word same वही चीज है. So what does it look like and what does it say? It says you will have to study Indian culture. What in Indian culture? Salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient to modern times. So ancient से लेके modern time तक जो भी आर्ट एंड कल्चर का फेसेट या डायमेंशन है, यू विल हैव टू कवर दैट. देन आफ्टर दैट वी हैव मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में क्या आप स्टडी करोगे? फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th century until the present, significant events, personalities and issues. So what were the issues in the modern Indian history from around 1750s to the present day? issues क्या क्या रहे हैं, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल किस हिसाब से चला है, ठीक है, वो सारी चीजें आपने इसमें स्टडी करनी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. देन द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. सो सबसे पहले वेरियस स्टेजेस. सो यू नो ऑलरेडी कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, इट हैड वेरियस स्टेजेस लाइक सबसे पहले द रिफॉर्म पीरियड और द रेनेसां पीरियड, ठीक है. आफ्टर दैट वी कम टू द मॉडरेट फेज. Then we go to the extremist phase after the Surat split, ठीक है. And after that we come back and Mahatma Gandhi ji had come back from South Africa and he had entered the Indian freedom struggle scenario, and that phase is eventually known as the Gandhian phase of Indian freedom struggle. And you also have to study the important contributors or the contributions. For example, कि महात्मा गांधी जी की क्या आइडियोलॉजी थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की क्या आइडियोलॉजी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का क्या कंट्रीब्यूशन था, विमेन का क्या कंट्रीब्यूशन था, यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन था, रेवोल्यूशनरीज कौन थे. सो इवेंचुअली एवरीथिंग दैट यू हैव टू कवर हियर. देन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सो नॉट जस्ट वन पार्ट, फ्रॉम ऑल द parts of the country. So holistic preparation of the freedom struggle is important. Then in the post independence period, we see after the 1947 also India and Indian economy, Indian polity that was flawed with challenges, ठीक है, but still we have come up through those challenges and still we are the largest functioning democracy of the world. So post independence consolidation, reorganization within the country, that is कैसे linguistic basis के ऊपर हमारी states का division हुआ, ठीक है. फिर उसके बाद land reforms आए, then the planning commission, क्या क्या planning commission ने किया हमारे लिए. So all that has to be discussed. History of the world, that is the world history. What will it include? It will include events from the 18th century such as the industrial revolution. So industrial revolution से आपने study करना है. The world wars, that is the first world war and the second world war. Redrawal of the national boundaries, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism and the forms and the effect on the society. So उनका जो इफेक्ट था कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, ये सब का ऑन द सोसाइटी, दैट यू हैव टू स्टडी. एंड देन यू आल्सो हैव टू स्टडी व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू द वर्ल्ड वॉर्स टू एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड हिस्ट्री encompasses, ठीक है. सो नाउ
moving to the second part of the syllabus. The second part of the syllabus basically has Indian society and the geography. Now Indian society में क्या क्या चीजें हैं? Salient features of Indian society and diversity of India. So if you see the salient features of Indian society is basically very diverse in nature. और diversity आपकी अलग अलग तरीके की हो सकती है. कौन कौन सी diversity आपकी हो सकती है? The diversity can be basically religious, कि India is home to all the major religions of the world. Then it can be ethnic diversity also. ठीक है, ethnic diversity, इसके अलग अलग challenges हैं, अलग अलग way forwards होंगे. Then there is also cultural diversity. ठीक है, cultural diversity में you will have linguistic diversity also. ठीक है, तो ये सारी diversities को आपने study करना है. Basically this is included in the diversity of India and the salient features of Indian society, that how does Indian society looks like. For example, it is a very religious society. ठीक है, it has respect for the elders. So this all is covered in Indian society. Then there is role of women and women's organization, population associated issues. So population is included. Then role of women and the women's organization. Then poverty and developmental issues, urbanization, their problems and the remedies. So poverty और urbanization, इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं और इसकी क्या क्या रेमिडीज हैं. सो फॉर एग्जांपल इंडिया की जो अर्बनाइजेशन रही है, दैट वाज नॉट हैविंग वेरी स्ट्रक्चर्ड, जो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें नहीं आई है. ठीक है, सो प्लान्ड अर्बनाइजेशन नहीं हो पाई है हमारी. दैट इज व्हाई द इंडियन अर्बनाइजेशन वाज आल्सो फ्रॉट विद चैलेंजेस, एंड नाउ वी आर कमिंग अप विद रेमेडीज फॉर देम. So what are those remedies, और current affairs में क्या क्या रहता है? So all that becomes important in this aspect of the Indian society. Then there is effects of globalization on the Indian society. Globalization, that is कि कैसे हम LPG reforms after the 1990s, जिसको हम liberalization, privatization और globalization की फॉर्म में स्टडी करते हैं, उसके बाद इंडियन सोसाइटी ने कैसे इवॉल्व किया है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन सोसाइटी के ऊपर. Then social empowerment, communalism, regionalism and secularism. तो these are some of the terms that are mentioned in the syllabus, और इनके ऊपर direct question examiner जो है put forward करता है. For example कि secularism क्या होता है, ठीक है, इंडिया और वेस्टर्न सेकुलरिज्म के बीच में क्या फर्क है. देन व्हाट इज रीजनलिज्म, रीजनलिज्म की वजह से इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे रीजनलिज्म हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, कैसे अलग अलग स्टेक होल्डर्स इससे इफेक्ट हो रहे हैं. सो एवरीथिंग इज प्रेजेंट हियर. देन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी. फिजिकल ज्योग्राफी, नाउ वी कम टू योर ज्योग्राफी वाला पोर्शन. दिस पोर्शन इज बेसिकली मेंट फॉर योर ज्योग्राफी. सो वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस कहां पे किस हिसाब से लोकेटेड हैं और उसके पीछे का कारण क्या है, व्हाई आर दोज नेचुरल रिसोर्सेस लोकेटेड देयर एंड हाउ इज ह्यूमैनिटी बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग दोज नेचुरल रिसोर्सेस. उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, उसका भी कुछ वे फॉरवर्ड रहेगा. So what is it? Distribution of key natural resources across the world, including South Asia, Indian subcontinent, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries. So these are the industries. Industries कहाँ पे किस चीज की कैसे located हैं. Then in the various parts of the world, including India. After that we go to the last part of the syllabus, which basically has important geophysical phenomena. क्या होते हैं geophysical phenomena? सिलेबस में क्लियरली मेंशन्ड है, सच एज अर्थक्वेक्स, सुनामीज, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन्स एक्सेट्रा. सो ये सारी चीजें इसमें हैं. देन ज्योग्राफिकल फीचर्स, देयर लोकेशन, चेंजेस इन द क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स. फॉर एग्जांपल इसमें हम स्टडी करते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, एंडोजेनेटिक फोर्सेस. सो ज्योग्राफी में एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से भी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होता है. सो ऑल दिस इज इंक्लूडेड इन द लास्ट पार्ट एंड इन द फ्लोरा एंड फौना एंड इफेक्ट्स ऑफ द सच चेंजेस. सो इफेक्ट्स ऑफ द सच चेंजेस, एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से फ्लोरा और फौना के ऊपर क्या इफेक्ट्स हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड्स की वजह से फ्लोरा एंड फौना कैसे इफेक्ट होता है किसी रीजन का. सो एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी हियर. सो दिस इज व्हाट द सिलेबस ऑफ GS1 और द जनरल स्टडीज 1 लुक्स लाइक. बट इतना बड़ा सिलेबस देख के या ऐसा सिलेबस देख के हमने डरना नहीं है.
सबसे पहली बात। तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है। देन कम्स द थर्ड पार्ट कि उस सिलेबस को प्रिपेयर कैसे करना है। तो इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर द की सोर्सेज ऑफ द बुक लिस्ट। सो द बुक लिस्ट वी विल जस्ट स्किम थ्रू द बुक लिस्ट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती हैं, एनसीईआरटीज क्या होती हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटीज आर बेसिकली द फाउंडेशन बुक्स। तो जब भी कभी आप देखते हैं कि किसी भी घर की नींव रखी जाती है, देन एवरी टाइम वी मेक श्योर कि वो नींव जो है दैट इज वेरी स्ट्रांग। दिस इज बिकॉज tomorrow if there is some shaking in the ground due to the earthquakes or something else happens, then that neve should survive it. So NCERTs are basically wisdom. These are the wise books or these are the wisdom books which we didn't study that much in the school times, और वो जो loopholes हैं, now the life is giving us another opportunity to revisit those books and now build our foundation, strong foundation. So सबसे पहले आपकी कुछ NCERTs रहेंगी इंपॉर्टेंट, देन देयर आर सम स्टैंडर्ड बुक्स विच यू नीड टू फोकस अपॉन। सो पहली चीज जो हमने डिस्कस की थी, हाउ डू वी प्रिपेयर द आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को आप दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, और रादर ये दोनों सोर्सेज आपके कॉम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला सोर्स रहेगा NCERT क्लास 11 एंड इंट्रोडक्शन टू द इंडियन आर्ट। सो दिस इज the NCERT. This is how that NCERT cover page looks like. So don't get confused. This is the NCERT which will be your base material. इसको अपने बेस मटेरियल बनाना है, इसको कवर टू कवर पढ़ना है कि इसमें क्या दिया है, किस हिसाब से हमारा आर्ट एंड कल्चर इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द प्रेजेंट डेट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट रेफरेंस बुक विल बी नितिन सिंघानिया। तो वाई रेफरेंस बुक? आई मीन टू से कि दिस इज अ स्टैंडर्ड सोर्स, but not everything in this book is important. Your basic source will remain the NCERT. इसको आपने कवर टू कवर पढ़ना है और अपने जहन में बिठाना है। पहली रीडिंग आपने एक नॉवेल की तरह लेनी है, सेकंड रीडिंग में आपने थोड़ा सा देखना है क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए हैं, थर्ड रीडिंग को आपने सबकॉन्शियसली उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू रीड दीज NCERTs. But Nitin Singhania, this is a quite a bulky book. So you just need to use it for reference. आप इसको पढ़ सकते हो अपनी क्यूरियोसिटी को एनहांस करने के लिए, बट इसको कवर टू कवर याद करने की जरूरत नहीं है। Then next we go to the modern Indian history. Modern Indian history an integral part of GS1 syllabus, क्योंकि यहां से कई बार कई क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, आई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए अगेन द बेसिक बुक विल रिमेन NCERT क्लास 12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3. So how does this book look like? This is basically the cover page of that book. ठीक है, so themes in Indian history part 3. Next, there are some standard sources of the reference books which we can also use. What are the standard sources? There are two standard sources. The first one being, जिसको हम स्पेक्ट्रम कह देते हैं, that is a brief history of modern India, which was written by Rajiv Ahir. So Mr. Rajiv Ahir, an ex-civil servant, he has written the book and it is published by the Spectrum Publications. This is how the book looks like. ठीक है, इसको आपने कवर टू कवर एक बार पढ़ लेना है for the standard source, for the reference source. And after that, you will also use Bipin Chandra as a standard reference book. This is how Bipin Chandra's modern Indian history looks like. Okay, so these are the standard sources जिसमें से आपको सारी चीजें तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बट अगर कोई आपको लगता है कि क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, आप उसको स्टडी कर रहे हो एंड यू वांट एन एडिशनल डिटेल फॉर इट, देन यू कैन यूज दिस बुक्स फॉर द रेफरेंस मटेरियल. ठीक है, Then moving forward we have Indian society. So Indian society के various aspects हमने study किए कि किस हिसाब से एक holistic syllabus Indian society के लिए दिया है UPSC ने. Indian society को prepare करने के लिए again there are various NCERTs. कौन कौन सी NCERT है? Class 11 sociology, that is understanding society. This is small NCERT, इतनी सी NCERT है, इसको आपने cover to cover पढ़ना है. Then class 11 sociology, introducing sociology. This is how that NCERT looks like. Class 12 Indian Society. This is the Indian Society book, yellow covered.
Then class 12 social change and development. This is the social change and development NCERT. तो ये चारों NCERTs आपकी एक नींव को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देगी इंडियन सोसाइटी में. आपको पता लग जाएगा कि हाउ इंडियन सोसाइटी हैज इवॉल्व्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एंड देन इन द इंडियन सोसाइटी देयर आर सम की नीश एरियाज जिनके ऊपर आपको पर्सनल सेल्फ नोट्स बनाने पड़ेंगे. किस किस चीज के किस हिसाब से सेल्फ नोट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को स्टडी करना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इंडियन सोसाइटी से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं. सबसे पहले इंडियन सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी है, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी. ठीक है, तो ये सारी डाइवर्सिटीज के ऊपर आपके पास नोट्स होने चाहिए, आपके पास माइक्रो डायग्राम्स होने चाहिए. देन अर्बनाइजेशन चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, कि क्या क्या अर्बनाइजेशन के चैलेंजेस रहे हैं, इनके वे फॉरवर्ड्स क्या हो सकते हैं. सो यू शुड बी हैविंग द स्मॉल हैंड रिटन नोट्स फॉर दीज टॉपिक्स. ग्लोबलाइजेशन, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ऑल दीज टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर यू शुड बी हैविंग योर ओन नोट्स और द हैंड रिटन नोट्स. इसके लिए आप बेसिकली अपनी एनसीईआरटीज को यूज कर सकते हो कि एनसीईआरटीज में इनके ऊपर क्या दिया हुआ है, एज आई हैड मेंशन्ड दोस 4 एनसीईआरटीज. एंड द सेकंड रेफरेंस मटेरियल फॉर देम कैन बी योर न्यूज़पेपर, दैट इज द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस. इन दोनों में से आप अपना मटेरियल जो है निकाल सकते हैं और उस मटेरियल को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स इन योर आंसर्स. ओके, सो दिस इज हाउ you need to prepare for the Indian society ka part. Now, the last but not the least, the geography. For some people it is the most feared aspect of the GS1, but you need not fear that. This is because the base material or the key material, foundational material will remain the same, that is your NCERTs. So NCERTs कौन सी important है इसमें? NCERT class 11 fundamentals of physical geography. This is how it looks like. Then NCERT class 11 India physical environment, that is the physical environment of India. This is the NCERT. NCERT class 12 fundamentals of human geography. Then NCERT class 12 India people and economy. So ये NCERTs में basically आपकी इंडस्ट्रीज को भी कवर किया गया है, इंडिया के फिजिकल एनवायरनमेंट को भी कवर किया गया है, पूरी वर्ल्ड की फिजिकल एनवायरनमेंट को भी कवर किया गया है, and industries की location, the key factors, everything is encompassed here. Then the key aspects of human geography में for example cultural geography आपकी आ जाती है. ठीक है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी में भी कवर हो जाएंगी. सो दीज एनसीईआरटीज कवर टू कवर यू विल हैव टू स्टडी. एनसीईआरटी स्टडी कैसे करनी है, इसके ऊपर भी हम वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो लेक्चर. सबसे पहली रीडिंग आपने सिर्फ एक कर्सरी ग्लांस लेना है, कुछ नहीं सोचना है कि किस हिसाब से आपने किताब पढ़नी है. सो जस्ट यू विल हैव टू रीड इट लाइक अ नॉवल. सेकंड रीडिंग, टेक द रीडिंग विद रेफरेंस टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. एंड थर्ड रीडिंग अगेन आपका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चलने लग जाएगा. एंड देन यू विल हैव टू टेक द थर्ड रीडिंग विद रिस्पेक्ट टू द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन. सो दिस इज हाउ these 4 NCERTs will remain your base material or the foundational material. And then there is a standard reference book, that is GC Leong Certificate Physical and Human Geography. This is how that GC Leong book looks like. तो ये आपने एक रेफरेंस मटेरियल की तरह या फिर एक स्टैंडर्ड बुक की तरह इसको यूज करना है. इसको कवर टू कवर हर एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट्स को कवर करने की जरूरत नहीं है. दिस इज हाउ your entire syllabus looks like, and this is how you will have to prepare this entire syllabus. So ऐसे ही informative video lectures के लिए जुड़ते रहिए Nimbus Academy IAS के साथ. ठीक है, so we also have nimbus.ias as our Instagram handle. You can also connect to us from there. Then Nimbus Academy HAS or IAS, that is our Telegram channel, and Nimbus Academy IAS is our YouTube channel also, and we have Nimbus Academy as an app also on the App Store. ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और then you can connect to us and kindly share this informative content with your friends who want to prepare and
for this examination or who are already preparing for this examination. So all the very best, and I hope you all get success and eventually जुड़ते रहिए Nimbus Academy IAS के साथ, and we will give the necessary boost to your preparation. So good luck and Shabba Khair.